Good evening, sir. How are you? Good, good. Welcome to the coaching talk show. And this talk show, is sponsored and powered by Life's Honor. And apart from that, the main objective of this show is all about how we can transform youth. And like you are as a amazing youth, energetic youth, enthusiastic youth. So definitely, I always try to best something. Take it very positive things from youth, and especially जो youth कहते हैं ना एक पॉजिटिविटी क्रिएट करता है, एक स्प्रेड करता है, वही दूसरे यूथ में कहीं ना कहीं जाके ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ सकता है और यूथ ही आने वाला नेशन होता है। हम लोग बड़ी बड़ी चीजों पे बातें करते हैं लेकिन हम यूथ पे बहुत बार बातें नहीं कर पाते हैं। तो मेरे ये जितने टॉक शो चल रहे हैं, लाइव ऑनर के जितने टॉक शो चल रहे हैं ऑल ओवर द मंथ, सो आई एम वेरी हैप्पी टू से दैट दिस ऑल टॉक शो इज बिकॉज ऑफ ओनली यूथ। Thank you, Imran, to join us. People are joining slowly, slowly because we have started 4 to 5 minutes before from our time. So, all right. So, before starting, I would love to hear from your side, Vaishnavi. So, before starting, I would love to give a brief intro about Vaishnavi. When Vaishnavi is right now studying in a college, she is doing some, microbiology. If I'm not wrong, microbiology, and she is also apart from that one of the enthusiastic personality, one of the positive personality, and especially she is one of that youth those actually wanted to change something in society। एक ऐसा यूथ जब समाज में कोई कुछ बदलना चाहता है, वैष्णवी उनमें से एक है, इसीलिए आज वो हमारे यहाँ हमारे टॉक शो में है। सो लेट्स स्टार्ट एंड फर्स्ट बिफोर दैट आई वुड लव टू हियर ब्रीफ अबाउट यू वैष्णवी हियर। Thank you so much, sir. Firstly, I would like to thank you and Life Honors team for granting me this opportunity. I really feel very fortunate to share this virtual stage with you, and I'm sure that this session is gonna rock. Thank you so much for this wonderful opportunity. Thank you. So Vaishnavi, before starting, would love to hear from your side. What is your hobby? Sir, my hobby is singing and cooking as well. But singing Mhm, is my main, it's like my passion. I do it anytime, and whenever I feel like I'm not in a good mood or I'm not happy, mhm, I do sing. I do sing every time. Actually, mhm, when I'm not able to learn anything, whether it is about my subjects or anything else, I do learn. I do mhm, sing. So that's mhm, about, that's my hobby. mhm, I do mhm. love singing. That's really good because singing is one of the, I can say, a great healing process so that you can also heal Exactly. yourself, right? Exactly. When you are stuck. So that's great. That's great. So what do you think, about your interest, Vaishnavi? What is your interest area? So my interest area is about researches. Like I belong to microbiology field, so I've not done research in this field, but I have Mhm, studied various researches of other mhm, research papers of other. So I do like reading that, and I do also love observing nature. Like in my mhm, free time, I do water plants and I do plant trees as well. I have developed this habit in lockdown itself. mhm, I learned it mhm, from my दादी माँ. She is a nature lover, mhm, and from बचपन से मैंने उनको वो सब activities करते हुए देखा है, planting trees, mhm, taking care of them. mhm. So I'm obsessed with that. So I learned all that. How to plant a tree, Amazing. how to grow it. I'm in Mm. that. Sounds good. So seems like you are very close to nature, and I personally believe who all are Exactly. close to nature, they are very close to people as well, because nature and people both are on the same platform. Why? Because both are close to humanity. So that's the most important part. That's good. That's good. That's very nice. So Vaishnavi, what do you think about so I'm starting my questions, and I'm sure you are comfortable with me with my Yeah, questions. yeah, You know. sure. So what do you think about the common challenge in youth in these days? एक ऐसा कॉमन चैलेंज कौन सा है जो आजकल यूथ में आपको लगता है क्योंकि आप यूथ के बीच में रहते हैं, हर रोज रहते हैं, हर मोमेंट रहते हैं, तो Yes, आपसे sir. बेहतर मुझे नहीं लगता कोई बता पाएगा। Sir, I think that there are एक ही challenge सिर्फ ऐसा नहीं है. There are many challenges which are हम्म, recent youth, which our youth is facing recently. हम्म, But हम्म, अगर हम common challenges की बात करें तो firstly I हम्म, would like to tell the first one is criticism.
क्रिटिसिज्म का एक ऐसा वो है जिससे आजकल की यूथ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है. लाइक इफ़ वी टॉक अबाउट कॉलेजेस, लाइक आई एम इन अ कॉलेज, सो इफ़ आई टॉक अबाउट दैट, कॉलेजेस में क्या होता है कि बच्चों को जज किया जाता है उनके लुक्स के बेसिस पे, उनके अंदर टैलेंट है या नहीं है उसके बेसिस पे. मतलब टैलेंट को तो छोड़ ही दीजिए, एक बार को लुक्स के बेसिस पे उन्हें जज किया जाता है कि वेदर दिस बॉय इज लुकिंग स्मार्ट और नॉट, और वेदर दिस गर्ल इज अप्लाइंग लेयर्स एंड लेयर्स ऑफ मेकअप ऑन हर फेस, एंड इज शी लुकिंग गुड, और इज शी लुकिंग दैट गुड दैट शी कैन बी पुट इन फ्रंट ऑफ कैमराज, और लाइक दैट, or on the holdings of a specific college, like that. So other people feel criticized because of this. और लोगों को इससे क्रिटिसिज्म लगता है क्योंकि सिर्फ उन्हीं लोगों को आगे ले जाया जा रहा है जो या तो बहुत सुंदर दिखते हैं या फिर जिनके अंदर टैलेंट भी है. जो जिनके अंदर टैलेंट नहीं है लेकिन वो कर सकते हैं, उन्हें कभी चांस ही नहीं मिला किसी चीज़ का. Like if a girl is doing anchoring from a specific section or from a college, he or she will continue doing that until and unless she gets passed from that college, she will continue with that. So एक criticism ऐसा टॉपिक है जो यूथ को बहुत अफेक्ट करता है, जो कॉमन चैलेंज है यूथ में. एंड द नेक्स्ट थिंग विच आई वांट टू टेल इज रिलेशनशिप्स. लाइक रिलेशनशिप एक ऐसा टॉपिक है, यूथ आजकल की इस चीज़ को लेके बहुत अफेक्ट हो चुकी है. जैसे आई एम नॉट टेलिंग कि रिलेशनशिप्स आर नॉट राइट, मे बी वो सही चीज़ है और कई लोगों को सही लगता है, ठीक है, इट डजंट मैटर, बट उसमें आपको ये देखना पड़ेगा कि आप डिस्ट्रैक्ट नहीं हो, राइट. जैसे अगर आप कुछ काम, अगर आप रिलेशनशिप में हैं, सो दैट रिलेशनशिप शुड हेल्प यू फाइंड योर सेल्फ. वो आपको कहीं ना कहीं हेल्प कर रही है. अगर वो आपको डिस्ट्रैक्ट कर रही है, इफ इट्स डिस्ट्रैक्टिंग यू फ्रॉम योर पाथ, देन देयर इज नो यूज ऑफ दैट रिलेशनशिप. एंड इट्स नॉट ओनली रिलेशनशिप कि किसी बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशनशिप, इट्स नॉट लाइक दैट. योर रिलेशनशिप कैन बी विद योर फ्रेंड एज वेल. और अगर ज़रा सा भी किसी रिलेशनशिप में थोड़ा सा भी ऊपर नीचे हो जाए, आज लड़ाई हो गई, आज बात नहीं हुई, आज ये हो गया वो हो गया, तो सडनली हम लोग कहते हैं वी आर इन डिप्रेशन. What is depression? Depression is not a sudden. It's not all of a sudden. It doesn't happen all of a sudden. It's a slow and gradual process. So एकदम से एक रात में या एक दिन में या 2 दिन में डिप्रेशन नहीं होता. So relationship भी I will suggest to a young youth that अगर आप एक रिलेशनशिप में हैं, that's good. If it's benefiting you, that's good. ठीक है. अगर वो नहीं भी बेनिफिट कर रहा है, if then also that person is supporting you in your life, then that's good. But अगर वो वर्कआउट नहीं कर रहा है, then there is no need to be in a fake relationship, ठीक है, which will affect you. और फिर बाद में पता चले आप you are a victim of depression, so there is no need of that relationship. बाकी it depends on youth. So these are the basic challenges which are youth. So as per you, what I can understand, two major challenges, two common challenges in youth. First is the relationship and second one is the criticism. So like you are talking about criticism. Thank you so much everyone who all are joining the Coaching Talk show. If you would love to join more shows and if you would be part of this show, so definitely on this page you can like, you can follow, and we'll get back to you on the same. So and apart from that, you can ask any question and query if you have on this comment section. And one more thing I would like to add, sir. जो मैंने भी रिलेशनशिप की बात करी है, that also leads to addiction, to various unnecessary things. मतलब अगर रिलेशनशिप में आज उससे बात नहीं हुई या कुछ भी ऐसी ऊपर नीचे हो गया, ऊंच नीच हो गई, तो people get attracted to these all wrong habits, like they start taking drugs, they start drinking, they start smoking, and addiction किसी भी चीज का हो सकता है आपको. So that I will come on point on addiction point. This is a very good point you just mentioned here about the addiction. It's also in my question today. So two things, criticism and relationship, both are a common reason and common challenges for youth in these days. And somewhere इस प्लेटफॉर्म के थ्रू मैं यूथ को यही मैसेज देना चाहता हूँ कि क्रिटिसिज्म होगा तभी आप आगे बढ़ेंगे. किसी भी क्रिटिसिज्म को कभी भी एक नेगेटिव मत समझिए, एक पॉजिटिव डायरेक्शन में उसे लीजिए और उसको पॉजिटिव समझकर उसको अप्लाई करिए अपनी लाइफ में कि अगर मेरे को किसी ने क्रिटिसाइज करा है या पॉइंट आउट किया है, आई विल प्रूव दिस पर्सन आई वाज नॉट रॉन्ग.
राइट, एंड वो प्रूफ करना है आपको अपनी परफॉर्मेंस से। जब हम कोई क्रिटिसिज्म लेते हैं ना, उस क्रिटिसिज्म को लेने के बाद ना हमारे अंदर एग्रेशन क्रिएट होता है। अगर मैंने आपको क्रिटिसाइज किया या आपने मुझे क्रिटिसाइज किया, तो एज ए ह्यूमन हमारे अंदर सबसे पहले क्या क्रिएट होता है? एग्रेशन क्रिएट होता है, राइट, गुस्सा। तो उस एग्रेशन को लोग दो तरीके से निकालते हैं। एक एग्रेशन आप ऑन द स्पॉट निकाल देते हो रिएक्ट करके अगले पर्सन, हाउ डेयर यू कैन टॉक लाइक दिस, राइट, दैट्स द वन थिंग। अनदर पर्सन, जो लोग सक्सेसफुल होते हैं ना लाइफ में, क्रिटिसिज्म हर इंसान की लाइफ में आता है। जो सक्सेसफुल लोग हैं उनके पास जो क्रिटिसिज्म आता है वो उसको किस तरीके से थ्रो आउट करते हैं? परफॉर्मेंस पे। दे परफॉर्म, उस एग्रेशन को कैरी करके वो परफॉर्म करते हैं और अपना बेस्ट करते हैं। दैट इज द सेकंड वे हाउ यू कैन हैंडल योर क्रिटिसिज्म एज अ यूथ, बिकॉज यूथ के अंदर क्रिटिसिज्म के कारण एग्रेशन बहुत जल्दी क्रिएट हो जाता है। सो दैट आई अंडरस्टैंड वेरी वेल, बट उसमें पेशेंस को रखने की बहुत जरूरत है, क्योंकि पेशेंस इज वन ऑफ अनदर गुड थिंग। और क्रिटिसिज्म फैमिली का भी हो सकता है, रिलेटिव का भी हो सकता है, फ्रेंड्स का भी हो सकता है, टीचर्स का भी हो सकता है, किसी का भी हो सकता है, राइट। डिपेंड करता है हम उस चीज को, सिचुएशन को, सिनेरियो के किस पर्सपेक्टिव से ले रहे हैं। दैट इज आवर क्रिटिसिज्म और दैट इज आवर फीडबैक, राइट। It could be a feedback as well. Another thing is all about, you were talking about relationship. So for youth, there is another common challenge. I can also feel that's called relationship challenge. मैं यूथ को अनदर मैसेज एक और यही देना चाहूंगा इसके चैनल के थ्रू, इस शो के थ्रू, कि आपने बहुत अच्छी बात बोली थी, मेरे को बहुत अच्छी लगी वैष्णवी। आपने एक बात अच्छी मेंशन करी कि रिलेशनशिप जरूरी नहीं है एक ही चीज का हो, रिलेशनशिप किसी भी चीज का किसी भी साथ हो सकता है, ठीक है। हमारा जो एक लव रिलेशन है वो हमारे पार्टनर के साथ भी हो सकता है, वो हमारे पेट के साथ भी हो सकता है, वो हमारी फैमिली के साथ भी हो सकता है, वो एक अजनबी के साथ भी हो सकता है, वो नेचर के साथ भी हो सकता है, वो हमारे गैजेट्स के साथ भी हो सकता है, राइट। तो कोई भी ऐसी चीज जो हमें अच्छी लगती है, हमारा उसके साथ एक इमोशनल कनेक्ट बनता है, और इमोशनल कनेक्ट बनते ही उसके साथ एक रिलेशन बन जाता है। और आपको पता है सबसे पहला रिलेशन क्या बनता है? वो होता है ह्यूमैनिटी का रिलेशन। और अगर किसी रिलेशनशिप में ह्यूमैनिटी का रिलेशनशिप नहीं बना है और डायरेक्ट वो रिलेशन बना है, इसका मतलब उसमें सिर्फ सेल्फिशनेस छुपी हुई है। समथिंग दैट पर्सन इज एक्सपेक्टिंग, दैट इज अ हिडन एजेंडा फॉर दैट रिलेशन, राइट। सो एक जेन्युइन रिलेशनशिप के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है इमोशंस को एज ए गुड ह्यूमन कनेक्ट करना दूसरे पर्सन से। दैट्स कॉल्ड ह्यूमैनिटी। So every youth, what I would suggest, if you are into a relationship or if you are going into a relationship, आप एक चीज जरूर चेक करिए जिसके साथ रिलेशनशिप में है, कि क्या आपका सबसे पहले और उस इंसान का क्या आपके साथ सबसे पहले ह्यूमैनिटी का रिलेशन है कि नहीं है। Very important, you know, very very important. So that's the two things I would love to mention here. My next question to you, Vaishnavi, you know, आई ऑलवेज यू नो, मेरे को शुरू से ही मेरा मतलब, मैं जैसे खुद भी यूथ हूँ, मैंने भी एज ए यूथ बहुत सारी चीजें बहुत जल्दी जल्दी शुरू करी एंड बहुत जल्दी जल्दी उस चीजों को, मतलब हमेशा मैं इसी चीज में लगा रहा कि खटाखट गोल टारगेट किए अचीव किए, गोल टारगेट किए अचीव किए, एंड एथिक्स को साथ रखा, वैल्यूज को साथ रखा, करेक्टरिस्टिक्स को एक डिफरेंट लेवल पे लेके गया। सो मेरे को एक चीज तो श्योर है 100% कि एक यूथ के अंदर ना, हर किसी के अंदर एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हिडन टैलेंट होता है। बहुत सारे लोगों को सुनता रहता हूँ आजकल, मैं जब मीटिंग्स करता हूँ, सेशन करता हूँ, कि आज का यूथ देखो, हम लोग ऐसे थे, आज का यूथ देखो। मैं उन्हें एक ही आंसर देता हूँ, हम भी किसी टाइम पे, या वो तुम भी किसी टाइम पे आज के यूथ थे, राइट। इज ऑल अबाउट कि यूथ में कोई भी चैलेंज नहीं है, यू नो, इज ऑल अबाउट राइट डायरेक्शन। आज की डेट में एक यूथ बहुत कुछ करना चाहता है, आज की डेट में एक यूथ इतना कुछ करना चाहता है, इतना कुछ करना चाहता है, इवन आई कांट एक्सप्रेस, इवन यू आर ऑल्सो यूथ। आप अपने आप को देखिए एज एग्जाम्पल, यू हैव ए फायर टू डू समथिंग डिफरेंट इन दिस वर्ल्ड। सोचिए, आप एक यूथ अगर दूसरे यूथ को इस तरीके का डायरेक्शन देंगे, तो उन लोगों की भी गाइडेंस अच्छी होगी, राइट। और एक यूथ को एक राइट गाइडेंस की जरूरत है, और राइट गाइडेंस के साथ एक राइट मॉरल सपोर्ट की जरूरत है, विदाउट एनी हिडन एजेंडा। करेक्ट। सो बीइंग ए यूथ, आई वुड लाइक टू आस्क यू कि कभी ऐसा हुआ है आपके मतलब इंस्टीट्यूशन में या बाहर भी कहीं, क्योंकि आप यूथ हैं, आपके फ्रेंड्स भी यूथ होंगे, कोई किसी की हेल्प बगैर रीजन के कर रहा है, एक यूथ दूसरे की हेल्प बगैर रीजन के कर रहा है, लाइक ह्यूमैनिटी। आज के डेट में यूथ में किस लेवल तक ह्यूमैनिटी अभी भी सरवाइव करती है?
सर They ह्यूमैनिटी are loving to humanity. है? सर लव ह्यूमैनिटी तो है. Hmm. I am not that much interactive with my no I am interactive with my college mates, but इस टॉपिक पे कभी हमारी आज सच बात हुई नहीं, to be very honest. इसका मतलब ये टॉपिक बहुत थोड़ा फेड है. आपके इस पॉइंट से मुझे ये समझ आ रहा है कि यूथ के डिस्कशन जब होते हैं, जो मुझे समझ आ रहा है, मोस्ट ऑफ या तो अराउंड द स्टडी होंगे, या अराउंड द फन होंगे, या अराउंड द फ्रेंडशिप होंगे, अराउंड द रिलेशनशिप होंगे, लेकिन ह्यूमैनिटी के ऊपर कोई डिस्कस नहीं कर रहा है. ह्यूमैनिटी के स्पेशल. ऊपर सर नहीं है, सच कोई नहीं होता. बट आई एम डूइंग समथिंग, मैं उसको बहुत छोटा समझती हूँ, बिकॉज Good to मुझे hear नहीं that. लगता कि हाँ मैं बहुत छोटा समझती हूँ कि यहाँ पे लोग इस वर्ल्ड में जब आप दूसरों की स्टोरीज पढ़ो तो वो लोग इतने बड़े बड़े काम कर रहे हैं कि अपना काम थोड़ा सा छोटा लगता है. बट व्हाट आई Absolutely. थिंक इज इफ आई वांट टू चेंज इन द सोसाइटी ना, तो किसी ना किसी को इनिशिएटिव लेना पड़ेगा. So Wonderful. let's start Good with thought. that. Let's start with that. So what I do is I used to teach some poor kids who cannot afford education. I had just started this in this lockdown recent time, and मुझे इतनी satisfaction मिलती है उस चीज़ को लेके. मतलब जब रात को मैं कभी सो रही हूँ तो मैं हमेशा एक चीज़ याद रखती हूँ कि what all I did in my whole day, मैंने पूरे दिन में क्या करा. So एक वो चीज़ याद रख के मुझे बहुत satisfaction मिलती है कि मैंने चाहे कुछ मिला ना हो मुझे, बट आई हैव सर्व्ड समवन, मैंने कुछ सर्व किया है. सो मे बी आगे जब मैं थोड़ा सा प्रॉस्पर कर जाऊँ या फिर थोड़ा सा हाँ, तो मैं इस चीज़ के लिए डेफिनेटली पुअर किड्स की एजुकेशन के लिए जो नहीं अफोर्ड कर सकते उनके लिए आई डेफिनेटली डू समथिंग. Very good. बहुत बढ़िया. Very good. Very good. Very good. I really loved it and really proud of you. That's why, you know, viewers, what I'm trying to say on this platform, वही यूथ है जो यूथ एक्चुअली में सोसाइटी चेंज करना चाहता है, और वो यूथ आप लोग भी हैं. जिस तरीके से वैष्णवी के अंदर एक वो कहते हैं ना फायर है कि मेरे को कुछ डिफरेंट करना है, लोगों की हेल्प करनी है, सोसाइटी में बदलाव लाना है, आप लोगों के अंदर भी है. डिपेंड करता है कितना टाइम आप अपने आप को दे रहे हैं. आई थिंक वैष्णवी, तो मेरा अगला क्वेश्चन से रिलेटेड ही आपसे कि आप अपने आप को मी टाइम हर रोज कितना देते हैं? सेल्फ टाइम ऑलमोस्ट सर मेरा मी टाइम ना, मैं एज आई टोल्ड यू दैट कि आई एम अ म्यूजिक लवर, सो मेरा मी टाइम इज विद माय म्यूजिक. दैट्स नॉट अ मी टाइम, दैट्स अ म्यूजिक टाइम. सर दैट्स अ म्यूजिक टाइम, बट मेरा जितना भी फ्री टाइम है मैं अपने आप को हार्डली ही कुछ टाइम दे पाती हूँ, क्योंकि सर आजकल थोड़ा सा वर्चुअल प्लेटफॉर्म पे सब कुछ हो गया है तो सब मैनेज करना पड़ता है. बट ठीक है, मेरा मी टाइम नहीं हो पाता, वो मी टाइम नहीं होता, तो फिर ये है कि आई ऑलवेज जो मेरा म्यूजिक का टाइम है वो डिफाइंड है सर. वो तो होता ही होता है, चाहे मुझे मी टाइम मिला ना मिले. और मैं क्योंकि आई एम सो टच्ड, मैं इतनी जुड़ी हुई हूँ म्यूजिक के साथ कि मेरा मी टाइम मुझे म्यूजिक के साथ ही मिलता है. आई लव आपका मी टाइम आपका म्यूजिक के साथ मिलता है, लेकिन आपको ऐसा लगता है पर्सनली कि बीइंग ए यूथ, इफ यू कनेक्ट विद योरसेल्फ विद म्यूजिक ऑब्वियसली, so you connect somewhere with your inner self also by music. आप कभी inner self से connect करते हैं म्यूजिक के साथ? Yes sir, I do. I just मुझे एक चीज़ याद है कि when you took a session in our college, आपने लास्ट में एक एक्टिविटी कराई थी जिसमें आपने एक कोई मंत्र थे उनको करा था, and you asked her to meditation. I do that once in a day. While listening. Oh really? Yes, वो sounds good. ना हो, वो मंत्र ना हो चाहे, बट कोई भी लाइट म्यूजिक हो, आई डू लिसन दैट एंड आई डू थोड़ी देर आईज क्लोज करके आई डू सिट. मैं थोड़ी देर शांत बैठ जाती हूँ कि ठीक है, लेट्स डू दिस, बिकॉज म्यूजिक आपने जैसे बताया दैट्स इट्स अ थेरेपी, इट्स रियली अ थेरेपी. इफ यू आर डिस्टर्ब्ड, इफ यू आर इन स्ट्रेस, इफ यू आर इन डिप्रेशन, इट विल हेल्प यू आउट. वो आपको उस चीज से बाहर निकलने में जरूर हेल्प करेगा. दैट विल डेफिनेटली हेल्प यू आउट विद दैट. Absolutely. Music is always helpful, and music therapy is always helpful for everyone, you know, and especially music therapy is one of the best therapy, so you can heal yourself, and depend person to person, you know, it's a personal choice as well. All right, cool. So first of all, thank you so much who all are joining here. My next question to you, Vaishnavi, do you think you know, your mom, dad, your family, that means your parents, is really helping for you for your career? Yes sir, they do help me.
even they tell me ki do whatever you want to do. Like some parents do pressurize their kids that do this, no you have to become a computer science engineer, no वो अपने बच्चों को ना 3-3 4-4 साल नॉन स्टॉप कोचिंग करवा लेते हैं, नीट की, एम्स की। मतलब बच्चा चाहे म्यूजिशियन बनना चाहता हो, बच्चा चाहे सिंगर बनना चाहता हो, चाहे डांसर बनना चाहता हो, बट वो बच्चे को नहीं आपको यही करना है, यू हैव टू डू दिस। बट आई जस्ट फील ब्लेस्ड टू हैव अ पेरेंट्स हु हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी इन माय डिसीजन। दे हैव नेवर आस्क्ड मी कि तुम ये करो या वो करो। बीइंग द एल्डेस्ट ऑफ माय फैमिली दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड मी कि डू व्हाटएवर यू वांट टू डू, जो भी करना है करो, बट डू इट विद फुल पूरे मन से करो उस चीज़ को। ये नहीं कि तुम आधे में, अगर हमें किसी चीज़ को करने की इच्छा ही नहीं होगी ना, जैसे कई लोग होते हैं कि अपना फोकस डिसाइड नहीं कर पाते। अगर मैं इसको थोड़ा एलाबोरेट करके बोलूँ तो ये होगा कि स्टे फोकस्ड। बिकॉज अगर उन्होंने मुझे हमेशा सिखाया कि करो कुछ भी बट स्टे फोकस्ड, क्योंकि अगर आप फोकस से हिल जाओगे, क्योंकि यहाँ पे इस वर्ल्ड में इतनी सारी चीज़ें, आज हमें ये अच्छा लगेगा, कल हमें वो एक्टिविटी अच्छी लगेगी, है ना। अपनी एक्टिविटी जो हम कर रहे हैं वो हार्डली ही कभी पसंद आती है। अगर हमें कोई नया इंसान मिल जाए किसी नए कोर्स के साथ, किसी नई एक्टिविटी को कोई परस्यू कर रहा है, सो वी डेफिनेटली गेट लीन टूवर्ड्स दैट। सो हमें वो चीज़ ज़्यादा पसंद आने लग जाती है, फिर हम उस चीज़ के पीछे भागने लग जाते हैं, बट दैट्स नॉट। और एक प्रॉब्लम जो आजकल यूथ में है वो ये है कि पहले हम लोग किसी चीज़ को ऑप्ट तो कर लेते हैं, बट उस चीज़ में बाद में हमें इंटरेस्ट आना बंद हो जाता है। हम लोगों को लगता है कि एब्सोल्युटली यू टैप्ड, आपने वो पॉइंट टैप किया है जो रियली मेरी बहुत क्लोज ऑब्जर्वेशन है। यू आर एब्सोल्युटली राइट, करेक्ट। एग्जैक्टली, वो लोग मतलब बच्चों को ये लगने लग जाता है कि हमारा शायद इसमें फ्यूचर नहीं है, शायद वो नहीं है। बट आई वुड लाइक टू टेल द यूथ कि अनटिल एंड अनलेस आप किसी चीज़ में अच्छा करेंगे, आपको उसमें कोई भी फ्यूचर नहीं दिखेगा। लाइक इफ़ आई टेक एन एग्जाम्पल, अगर कोई कंप्यूटर साइंस इंजीनियर है, ठीक है, ही इज़ अ वेरी गुड सॉफ्टवेयर इंजीनियर सपोज, तो अगर उन्होंने उस फील्ड में एक्सेल करा है, सो ही विल डेफिनेटली से कि ये फील्ड बहुत अच्छी है, तुम्हें यही फील्ड करनी चाहिए, यू शुड गो फॉर दिस। और अगर इन केस कोई डांसर या कोई म्यूजिशियन इतना फेमस नहीं हो पाया, और अगर हमारा बच्चा म्यूजिशियन या डांसर बनना चाहता है, सो वी आर, हमें प्रेशराइज करा जाता है, देखो क्या मिलेगा तुम्हें फॉर डांस म्यूजिक करके, सो डू कुछ पढ़ाई की चीज़ करो, जबकि हमें वही करना चाहिए जो हमें अच्छा लगे हो। और हाँ, स्टे फोकस्ड वाली बात जो मैंने कही है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। You don't keep on changing things. Absolutely. Unless and unless Absolutely. focus, Focus is nothing will happen. Absolutely. Focus is very important for youth, and I personally believe also, without focus you can't achieve your goals. Without focus you can't achieve your success as well. And special apart from that, focus should be your vision. Focus should be your mission. But your goal could be changed. Right? अगर हम कोई गोल प्लान कर रहे हैं कि हमें ये करना है, लाइक अगर आपने एडमिशन लिया माइक्रोबायोलॉजी में और आपका गोल है कि मुझे माइक्रोबायोलॉजिस्ट बनना है या उसी से रिलेटेड जॉब करनी है, राइट, लेकिन समवेयर बिकॉज ऑफ मार्केट क्राइसिस, बिकॉज ऑफ अपॉर्चुनिटी क्राइसिस, आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, लेकिन आप यही सोच लो मुझे यही करना है, तो वो भी एक चैलेंज है। you should try to different strategy, you should try to different ऑप्शन एज वेल, कि ऐसा नहीं होता कि अगर एक चीज में आप एक फेलियर हो रहे हो, आप फेलियर नहीं हो रहे हो, सिचुएशन के कारण वो चीज डाउन हो रही है, लेकिन आप ये सोच रहे हो मुझे यही करना है, लेकिन जब सिचुएशन ये अलाउ नहीं कर रही, आप जबरदस्ती किस तरीके से कर सकते हो, अपने आप को किल नहीं करोगे, राइट। एक बच्चा अगर सोचता है मुझे आईएएस क्लियर करना है या यूपीएससी का एग्जाम क्लियर करना है, लेकिन अगर उसका क्लियर नहीं हो पा रहा है, तो ये तो है नहीं ना कि वो मतलब उसके अगर नहीं क्लियर हो पाया तो लाइफ में उसके अलावा कुछ करेगा ही नहीं। मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे हैं कि जो क्लियर नहीं कर पाए कोई एग्जाम एंड ऑल, उसके बाद वो स्ट्रेस और डिप्रेशन में आ गए, और वो आज तक इतने सालों से सिर्फ एक ही चीज को सोच रहे हैं, हमारा क्लियर नहीं हुआ, हमारा क्लियर नहीं हुआ, अपने आप को गिल्ट फील कर रहे हैं। मुझे लगता है गिल्ट फील कराना इज नॉट ए सॉल्यूशन। आगे मूव ऑन करना चाहिए यूथ को, एक नई स्ट्रैटेजी के साथ, नई अपॉर्चुनिटी के साथ, नए स्किल्स के साथ। हर यूथ के अंदर एक टैलेंट है, हर यूथ के अंदर एक हिडन सक्सेस है, that role, that secret behind of that success, but still उसको एक्सप्लोर करना है। और ये जरूरी नहीं है कि अगर आप जो भी एजुकेशन अडॉप्ट कर रहे हो, अगर आप ये सोचो कि मुझे इसी में ही करना है, आप पहले ये डिसाइड करो आपको करना क्या है लाइफ में। जैसा आपने बोला किसी को म्यूजिक पसंद है, गाना गाना पसंद है, गाना गाओ, हु इज स्टॉपिंग यू। किसी को ट्रैवल पसंद है, ट्रैवल करो, किसी को जो पसंद है वो करो, राइट। तो मुझे लगता है पर्सनली अपने आप को स्टॉप नहीं करना चाहिए। ऑल राइट, सो वैष्णवी, माय नेक्स्ट क्वेश्चन टू यू इज, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और मुझे उम्मीद आपको बहुत अच्छा लगेगा।
आपका विजन कैसा है? Is it clear or not clear as of now? Your vision. So my vision is now it's clear. Now it's totally clear. I have a very great. It may be not great. सबके लिए अपना विजन बहुत ग्रेट होता है, बट I can say that my vision is clear now. फिर से मैं वही बात कहूँगी वो फिर से मैं वही बात I have planned so many things that I will do, and I'm also pursuing a few things from them. But my vision is almost clear. फिर से मैं यही चीज़ कहूँगी कि वही stay focused वाली बात कि until and unless you stay focused, ज़रूरी नहीं है, मैं यूथ को ये बताना चाहूँगी, ज़रूरी नहीं है कि आपको एक गोल एक विजन लेके, आपको कोई कह रहा है कि आप लॉन्ग टर्म गोल बनाओ, लॉन्ग टर्म विजन देखो या शॉर्ट टर्म विजन देखो, आप एक पहले अगर इफ यू आर कंफ्यूज्ड इन समथिंग you can go with a short term vision. आप पहले एक short term vision बनाइए. When you cross that, that's called goal. No. Wait. I would correct you here one thing, because vision is always long term vision. Short term vision नहीं हो सकता, क्योंकि vision एक ही होता है. जो आप बात कर रहे हो ना short term vision की, वो vision नहीं होता, वो goal होता है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ. Then sure, we can go for a short term goal and then we can see उस vision को कंटिन्यू करने में, उस विजन तक पहुंचने के लिए हमें जो बीच में एक गोल बना सकते हैं कि लेट्स रीच देयर, यहाँ तक पहुंचे, सर्कल को क्रॉस कर. देयर इज अ प्रोसेस वैष्णवी, देयर इज अ प्रोसेस विजन तक. सबसे पहले क्या होता है? गोल, शॉर्ट टर्म गोल, ठीक है. उसके बाद क्या होता है? लॉन्ग टर्म गोल. तो जो हम शॉर्ट टर्म गोल पे काम कर रहे हैं वो हम लॉन्ग टर्म गोल के लिए कर रहे हैं. शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म अलग अलग नहीं हो सकते. लॉन्ग टर्म गोल के लिए काम कर रहे हो आप शॉर्ट टर्म गोल के साथ, ठीक है. जब आप शॉर्ट टर्म गोल पे काम कर रहे हो, आप लॉन्ग टर्म गोल अचीव करते हो. उसके बाद व्हाट नेक्स्ट इज योर मिशन, राइट? मिशन टुवर्ड्स टू योर विजन. क्योंकि जब आप गोल कंप्लीट करते हो तो आपका मिशन क्लियर होता है कि मुझे इसे किस तरीके से करना है, क्या स्ट्रेटेजी एग्जीक्यूट करनी है, किस तरीके से इसे ड्राइव करना है. दैट इज योर कॉल्ड योर मिशन. एंड आफ्टर दैट व्हाट इज नेक्स्ट इज ऑल अबाउट विजन. करेक्ट? सो दिस इज द प्रोसेस. शॉर्ट टर्म गोल, लॉन्ग टर्म गोल, mission, then vision. Sir, I want to add one thing कि जो मैंने भी बोला stay focused वाला, उसमें भी मैं ऐड करना चाह रही थी, अभी मुझे चांस मिला है. Sure. So I want to add that don't think what people think about you, या what they will say about you, how they will react. There is a saying which I want to tell that no matter what we do, someone or the other will always be unhappy. मतलब कभी कभी हम लोग इस चीज़ को सोच के डर जाते हैं कि लोग क्या कहेंगे, हम ये काम कर रहे हैं, काम छोटा तो नहीं लग रहा, बड़ा तो नहीं लग रहा, ज़्यादा ये तो नहीं हो रहा. तो इस चीज़ को लेके लोग ज़्यादा डर जाते हैं, इसीलिए वो अपना विजन ना इतना क्लियरली सोच नहीं पाते. और कभी कभी लोगों की भी अगर हम हट के बात करें तो कभी कभी दैट आई एग्री कि कभी कभी फाइनेंशियल स्टेटस की वजह से और फैमिली बैकग्राउंड की वजह से भी हमें कभी कभी कुछ ऐसे विजन्स, कुछ ऐसे गोल्स डिसाइड करने पड़ते हैं. या कभी अगर आप घर के बड़े हैं, है ना, तो यू हैव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, तो उस चीज़ को वो थोड़ा सा अफेक्ट करती है उस प्रोसेस को. एब्सोल्युटली. और बिल्कुल सही बात बोली आपने. कभी भी ये नहीं सोचना चाहिए किसी यूथ को कि बाहर के लोग क्या सोचेंगे, क्या होगा. यू नो, आप सबके अंदर एक टैलेंट है. आप सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आपको क्या अच्छा लग रहा है, ठीक है. अब बाहर के लोग अगर कह रहे हैं कि आपको ये करना चाहिए, ये अच्छा लगता है आप पे, लेकिन आप खुश नहीं हो, तो उसको करने का कोई फायदा नहीं है. कोई फायदा नहीं है. When you are happy to do something, अगर आप खुश हैं कुछ चीज करने से, आप वही करिए जिसमें खुशी मिलती है, ठीक है. सोसाइटी will not decide your destination, only you will decide your destination, right? So society is here to help you, society is here to give you feedback, improvise you, but somewhere आपका destination आपको खुद ही decide करना होता है. और I know very well, you know, I'm completely agreed and 100% I believe actually in today's youth. आज के यूथ में बहुत टैलेंट है, बहुत स्किल्स हैं, बहुत कुछ है. अगर वो उसको पोटेंशियल को अनलॉक करें और उसको एक्सप्लोर करें, उनके अंदर वो चीज है कि वो कोई भी सिचुएशन की गेम चेंज कर सकते हैं. मुझे बिलीव है, मुझे ट्रस्ट है यूथ के ऊपर. मैंने इसीलिए डिसाइड करा कि मी एंड माई कंप्लीट कंपनी लाइव्स ऑन अर्थ, पूरे मंथ, इंडिपेंडेंस मंथ पे हम लोग यूथ और टीनेजर्स को इंट्रोड्यूस करेंगे इस प्लेटफॉर्म पे, और उनके जो पर्सपेक्टिव हैं उसके थ्रू लोगों को ज्यादा से ज्यादा हेल्प पहुंचाएं. देखिए, बहुत सिंपल सी बात है. मैं अपने शो पे मैंने काफी गेस्ट बुलाए, इंटरनेशनल गेस्ट भी आते हैं इस पर, राइट.
उनके अपने डेजिग्नेशन है, उनके अपने एक मुकाम है जो उन्होंने अचीव किए हैं, लेकिन यूथ जो रियलिटी को समझता है, उसकी थॉट रखने के लिए उसे आगे आना पड़ेगा और उसको मौका देना पड़ेगा। उसके लिए मैं ये नहीं कह सकता हूं कि जो यूथ को गाइड कर रहा है वो आके बोले, वो आके बोल सकता है, लेकिन हमें मौका सबसे पहले यूथ को भी देना पड़ेगा, राइट? क्योंकि हर एक यूथ मैटर करता है हमारी सोसाइटी के लिए, क्योंकि यूथ ही तो नेशन को बढ़ा रहा है ना। बच्चे तो नेशन बढ़ा रहे हैं, टीनेजर तो नेशन बढ़ा रहे हैं, यूथ ही तो नेशन बढ़ा रहे हैं। जब हम उनसे ही नहीं समझेंगे उनका पर्सपेक्टिव क्या है, जब हम उन्हें ही नहीं सुनेंगे प्लेटफॉर्म के ऊपर और उनको प्लेटफॉर्म ही नहीं देंगे, क्यों? क्योंकि आप फ्रेशर हो, क्योंकि आप यूथ हो, आपने कभी कहीं पे अटेंड नहीं किया, कभी रिप्रेजेंट नहीं किया। आई विल नॉट गिव यू माई प्लेटफॉर्म, इट्स हैपनिंग, बट आई डिसाइडेड नो, विल गिव प्लेटफॉर्म, will give opportunity to youth, and let's explore this thing with youth, because youth is a power, what I believe personally. And you know, अगर youth नहीं बढ़ सकता ना और हम ही बढ़ रहे हैं तो ये भी ग्रोथ नहीं है। ग्रोथ का मतलब है एक नेशन में जहां हम एग्जिस्ट करते हैं वहां के यूथ को ग्रो कराना, क्योंकि वही तो नई चीजें लेके आएगा। क्रिएटिविटी, इनोवेशन, पावर, सक्सेस, यू नो, सबके अंदर टैलेंट है। एक रेडी वाला भी अपने बच्चे को जब भेजता है ना कॉलेज में पढ़ने के लिए, वो भी बड़ी उम्मीदें रखता है ना उस बच्चे से, उसके बच्चे में भी बहुत टैलेंट होता है ना। सो इट्स डिपेंड कि हम एक यूथ को किस पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं। और मैं इस वीडियो के थ्रू हर किसी को ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, कोई बड़े से बड़ी ऑर्गेनाइजेशन भी है, छोटे से छोटी ऑर्गेनाइजेशन भी है, अगर आपसे हो सकता है तो यूथ को मौका दीजिए, क्योंकि यूथ पावर इज वन ऑफ द बिगेस्ट पावर फॉर अस, यू नो। उनका माइंड, उनका थॉट क्रिएटिव होता है, जैसा मुझे लगता है पर्सनली, और गाइडेंस बहुत जरूरी होती है। तो जो भी यूथ जो इस शो को देख रहे हैं, अगर इफ यू वुड लाइक टू थिंक कि आप कुछ ऐसी चीजें, ऐसा पर्सपेक्टिव रिप्रेजेंट कर सकते हैं जिससे आप कम से कम सोसाइटी में चेंज ला सकते हैं, तो आप डायरेक्ट मैसेज करिए, माय टीम विल कनेक्ट and we'll check your initial interview as well on that. All right, cool. So Vaishnavi, I'm sure you are enjoying this platform, and I'm asking now next question to you, and I hope you will also like my next question as well. Vaishnavi, आपको क्या लगता है कि यूथ अभी किस चीज से लेके सबसे ज्यादा अफ्रेड है? कौन सी सिचुएशन को लेके सबसे ज्यादा डरा हुआ है? यूथ के पास डर, सबसे बड़ा डर का रीजन क्या है इस टाइम? Sir, as we all know that corona pandemic, COVID-19 pandemic is on set, अभी तो है वो, ठीक है। तो अभी तो यूथ में सबसे ज़्यादा डर इस चीज़ का है, चाहे वो कॉलेज के फर्स्ट ईयर में एडमिशन ले रहे हैं, चाहे वो कॉलेज के फाइनल ईयर में हैं, या फिर दे आर ऑन द वे कि वो कॉलेज से पास आउट हो रहे हैं। सो अभी तो यही है कि व्हाट विल बी द फ्यूचर, कि फ्यूचर हमारा कैसा होगा, या फ्यूचर में हमें क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगी, या क्या उसके सॉल्यूशंस होंगे। लाइक इफ आई टेक एन एग्जांपल, तो अभी जॉब को लेके जो इनसिक्योरिटी यूथ के पास सबसे मेन है कि आगे हमारा, कि फाइनेंशियली अगर हम पढ़ रहे हैं तो उसके बाद थोड़ा सा फाइनेंशियल सपोर्ट तो यूथ को चाहिए। तो उसके लिए हमारी जॉब कैसे होंगी, जॉब्स का क्या सीन होगा, सैलरी होगी नहीं होगी, या जॉब मिलेगी भी नहीं मिलेगी, उसके लिए अभी मेन जो यूथ का ये चैलेंज मुझे लगता है। सो मेन चैलेंज यूथ के लिए इस टाइम, यू नो, फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी एंड फ्यूचर एस्पेक्ट एज वेल, यू नो। हाँ, कोविड-19 के टाइम पे आगे कैसे फ्यूचर होगा उनकी, अगर जो कॉलेज में भी अभी स्टूडेंट्स हैं, आगे उनके लिए भी ये है कि आगे उनकी जो क्लासेस हो रही हैं, लाइक इफ आई टॉक अबाउट वर्चुअल क्लासरूम्स, दे आर हेल्पफुल बट नॉट टू दैट एक्सटेंट। उसमें कभी नेट कनेक्शन का इशू आ जाता है, कभी कोई ना कोई इशू है, तो फिर आप सारे जो एक्चुअल में एक ऑफलाइन क्लास का वो होता है, जिस माइंड से बच्चा वहाँ बैठ के पढ़ता है ना, वो कभी ऑनलाइन क्लास में हम ला ही नहीं पाएंगे। दैट विल लैक ऑलवेज। सो जो बच्चे हैं जो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में, उनके लिए ये प्रॉब्लम है, जो फाइनल ईयर्स में हैं उनके लिए ये प्रॉब्लम है कि व्हाट नेक्स्ट, अब क्या, क्योंकि एवरीथिंग इज लॉकडाउन। अब खुल भी गया है तो फिर भी बहुत लिमिटेड सीट्स हैं हर एक चीज़ के लिए, एंट्रेंस एग्जाम्स आर डिले एंड तो फिर इसीलिए ये इनसिक्योरिटी बहुत ज़्यादा है। बट आई वुड लाइक टू, हमारी यूथ सिर्फ कॉलेज तक तो नहीं है, वो यूथ भी है जो इतनी इतनी प्रॉब्लम्स होने के बाद भी दे आर विलिंग टू वर्क आइदर फ्रॉम वर्क फ्रॉम होम
or either on a physical basis they are ready to work, either they are paid or not. उन्हें सैलरी मिले ना मिले, उन्हें चाहे कितनी ही प्रॉब्लम्स फेस करके ऑफिस जाना पड़े या मार्केट जाना पड़े, दे आर रेडी टू गो, दे आर रेडी टू वर्क, and their this willingness, that is commendable. I would like to appreciate. Absolutely, absolutely, absolutely. And कुछ यूथ ऐसे भी हैं जिनको मैं भी पर्सनली जानता हूं, जो कॉलेज में पढ़ते पढ़ते भी अपनी डिफरेंट अपॉर्चुनिटी एक्सप्लोर कर रहे हैं, अपना एक बैकअप बेस तैयार कर रहे हैं फॉर फ्यूचर. जैसे फ्यूचर का डर है, तो बहुत सारे यूथ ऐसा है, उनको पता है. सपोज अगर एग्जांपल देता हूँ, वो माइक्रोबायोलॉजिस्ट है, वो यूथ अगर माइक्रोबायोलॉजी कर रहा है, उसके बावजूद वो अपना सेकंड बेस तैयार कर रहा है बैकएंड पे, कि अगर कल को मेरा इसमें करियर नहीं सेटल हो पाया ड्यू टू XYZ रीजन, तो मेरे पास एक सेकंड बेस है. अनदर थिंग, एक यूथ जो कॉलेज में पढ़ रहा है, उसमें कुछ ऐसे यूथ भी हैं जो उसके साथ साथ अपना सोर्स ऑफ इनकम भी कुछ प्लान कर रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ करते रहते हैं ताकि हम अपनी फीस अफोर्ड कर सके, ताकि हम चीजें अपनी अफोर्ड कर सके. एम आई राइट? यस सर, राइट, करेक्ट. सो बहुत सारा यूथ ऐसा है, एंड आई आल्सो अप्रिशिएट डेफिनेटली. सो वैष्णवी, my next question to you, not question exactly, just would like to know about your view. What do you think about Lives Honor? What is your aspect and what is your review on Lives Honor? आप क्या सोच के इस प्लेटफॉर्म पे आप आए आज? क्या सोच के आपने इस प्लेटफॉर्म के लिए ओके करा कि चलो मैं अपने थॉट्स रखती हूँ यहाँ पे कुछ, बिकॉज व्हेन माय टीम रीच आउट टू यू एंड आई रीच आउट टू यू, तो डेफिनेटली यू सेड यस. सो ऐसा आपका पर्सपेक्टिव क्या है लाइव्स ऑनर को लेके? सर फर्स्टली आई वुड लाइक टू थैंक फॉर दिस अपॉर्चुनिटी. एंड लाइव्स ऑनर मैंने पहले इसका कभी नाम, मतलब पहले मैंने नहीं सुना था. जब मैं इसके बारे में पता चला, व्हेन यू टुक दैट सेशन, आई वाज रियली, मुझे इतना ज़्यादा मतलब मोटिवेशन मुझे खुद मिला था. आई ट्राइड कॉन्टैक्टिंग, बट मैंने सोचा चलो लेट्स कॉन्टैक्ट लेटर, क्योंकि हम बीइंग ह्यूमन बीइंग्स वी डू डिले थिंग्स. हम लोग कहते हैं चल कल कर लेंगे वाला. सो इसीलिए, बट लाइव्स ऑनर आई वुड सजेस्ट, आज जो भी हमारी यूथ यहाँ पे है, जो भी इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, कि वो इसे और ज़्यादा स्प्रेड करे, क्योंकि दिस इज़ अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे यू विल फाइंड रियल यू, नॉट द रियल यू, द रियल यू. बिकॉज यहाँ पे fearless ट्रांसफॉर्मेशन की अगर मैं बात करूँ, तो इंसान जो अपने आप को एक्चुअल में नहीं पहचान पाता कि उसके क्या टैलेंट्स हैं, वो क्या चाहता है, जो उसके अंदर फियर्स होते हैं, उसे हटा के बिल्कुल यू आर ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अ ट्रूली डिफरेंट पर्सनालिटी. So that's all about Life Honors, and again I would like to thank Life Honor. And आज की यूथ को मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आप किसी को मोटिवेट कर पाते हैं, ठीक है, तो कीप डूइंग दैट. अगर आप किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते, प्लीज डोंट डीमोटिवेट. बट इफ यू कैन डीमोटिवेट वन, एंड दैट फॉर्म, ये नहीं कि आप मोटिवेट कर रहे हैं तो आप ही मोटिवेट कर रहे हैं. जस्ट फॉर्म अ चेन, चाहे आप अपने कॉलेज में बनाएं, चाहे अपने ऑफिस में बनाएं, चाहे अपनी लोकेलिटी में बनाएं. मेक अ चेन एंड ट्राई टू बी मेक अ चेंज इन द सोसाइटी विच यू वांट टू. जैसे हमने एक कोट है, एक सेइंग है, दैट बी द चेंज यू वांट टू सी इन द वर्ल्ड. तो एक और वो है कि बूंद बूंद से सागर बनता है. तो एक एक करके ही अगर हम एक एक जना अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे, अपना खुद एक इनिशिएटिव लें कि हमें ये करना है, देन ओनली अ चेंज कैन हैपन. सो दैट्स एब्सोल्युटली. And I thank you so much, Vaishnavi, for the kind words for Lives Honor as well, and for your valuable words also. Apart from that, मैं इसमें एक चीज और ऐड करना चाहता हूँ. बिल्कुल आपने सही बात बोली कि जितना हो सकता है एक यूथ का दूसरे यूथ को सपोर्ट करो, मोटिवेट करो, इंकरेज करो, लेकिन एक चीज को और ध्यान रखना, हो सकता है आपके छोटे छोटे क्रिटिसिज्म को आपका वो फ्रेंड्स, आपके वो कुलीग्स, जो आपके साथ वो यूथ है दूसरे, वो अपने माइंड में इस तरीके से बैठा रहे हैं कि हो सकता है वो एक स्ट्रेस लेवल या डिप्रेशन लेवल तक पहुंच जाए. ठीक है, हो सकता है आपके लिए, उनको लिए कहना बहुत इजी हो, अरे ये क्या कपड़े पहन लिए तुमने आज, तेरे पास कोई ढंग की शर्ट नहीं थी. लेकिन आपको क्या पता वो कौन से फाइनेंशियल बैकग्राउंड से आता है, क्या पता उसके पास क्या क्राइसिस है घर में. आप अचानक उसको बोल दे क्या शूज पहने, मेरे शूज देखो आजकल क्या फैशनेबल शूज हैं. आपको क्या पता उसको वो चीज कहाँ हर्ट कर रही है, और स्लोली वो अपने आप को किल किए जा रहा है. राइट, ट्राई टू डोंट डू दैट बिकॉज रीजन इज दैट कि व्हेन वी विल डू, जब हम ये किसी के साथ करते हैं, एक यूथ के साथ जब हम चीजें शुरू करते हैं, हमें नहीं पता
उसके इमोशंस पे वो चीज कहाँ कहाँ जाके हिट हो रही है, और वो क्या स्टेप ले ले हमारी छोटी छोटी चीजों से, राइट। तो अगर आपने बहुत अच्छी बात बोली, आई अप्रिशिएट योर वर्ड्स, कि अगर किसी को मोटिवेट नहीं कर सकते हो तो डिस्करेज भी मत करो, क्योंकि एक यूथ कौन से बैकग्राउंड से आ रहा है हमें नहीं पता। हेल्प करिए यूथ की, हेल्प करिए सोसाइटी की, और जब आप उनकी हेल्प करोगे, देखिए आपके अराउंड जो यूथ रहता है, जब आप वहां पे पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करोगे तभी तो आप पॉजिटिव रहोगे। अपने आसपास बैठोगे सफाई करके तभी तो साफ रहोगे। अपने आसपास गंदगी बना के बैठोगे तो आप भी तो गंदे ही हो रहे हो ना, चाहे आप कितनी भी साफ जगह पे बैठे हुए हो, करेक्ट। तो वो यूथ जिससे आप रोज इंटरेक्ट कर रहे हो, आपके आसपास है पूरे कॉलेज में, उनको मोटिवेट करके रखो, पॉजिटिव करके रखो, तभी तो आप भी उनसे बात करोगे, रोज पॉजिटिव रहोगे। सिंपल बात, बी पॉजिटिव एंड गिव पॉजिटिव। व्हाट डू यू से अबाउट इट वैष्णवी? So that's true. वो आपने बात वो वाली सही की कि अगर हम किसी गंदे एरिया में बैठे हैं, चाहे हम कितने भी साफ सुथरे बैठे हैं, बट वी विल ऑल्सो गेट, हम भी उस चीज़ से गंदे हो ही जाएंगे। सो यही चीज़ है कि अगर आप मोटिवेट करिए औरों को, अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करिए। ये नहीं कि हम कॉलेज में हैं तो हम कॉलेज में उस चेन को आगे बढ़ा सकते हैं, नो, डजंट मैटर, क्योंकि ना आप इस चीज़ को अपनी सोसाइटी में, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके ऑफिस में कोलीग्स हैं, यू कैन गो विद देम। अगर हाँ, एक चीज़ मैं और ऐड करना चाहूँगी, अगर आप किसी इंसान को स्ट्रेस देखते हैं, किसी को ऐसा आपको लगता है कि दैट पर्सन इज डिप्रेस्ड, गो एंड टॉक टू दैट पर्सन, नो मैटर्स वो किस बैकग्राउंड से है, वो पुअर है या बहुत कोई बॉस है कहीं का, कोई भी, इट डजंट मैटर्स कि वो किस बैकग्राउंड से आ रहा है, बिकॉज फर्स्ट थिंग दैट यू टोल्ड इज ह्यूमैनिटी। ह्यूमैनिटी सब, इंसानियत जो है, ह्यूमैनिटी सबसे बड़ी चीज़ है। तो उसी नाते आप उस इंसान के पास जाएं, उसे करें, उसे मोटिवेट करें, है ना, और उसे बताएं, उसे पूछें, उससे बात करें, क्योंकि डिप्रेशन इंसान को इसीलिए, क्योंकि इंसान डिप्रेस और स्ट्रेस तो इंसान अपनी प्रॉब्लम्स की वजह से होता है, क्योंकि हमारा कोई चीज़ को करने का टाइम नहीं है, हम की बहुत डिफरेंट चीज़ें हैं जिनको लेके हम स्ट्रेस हो सकते हैं। बट डिप्रेशन इंसान को तब आता है जब उसको कम्प्लीटली पूरी साइड से लग जाता है कि नाउ आई एम ऑल अलोन इन दिस फेज, अब मैं पूरा डिस्कनेक्टेड हो जाता है, जब डिस्कनेक्टेड हो जाता है, यस एग्जैक्टली। सो वी शुड कनेक्ट विद पीपल whom we are thinking that वो कनेक्ट नहीं करते हमसे, चाहे कॉलेज में जाएं, अपनी लोकेलिटी में कोई भी इंसान हो सकता है, एनी। और अगर कुछ नहीं कर सकते किसी के लिए, एक स्माइल पास कर दो, वो भी बहुत होता है, that's true. उसका कोई चार्ज नहीं लगता। किसी के साथ बात कर रहे हो, हंस के खुशी से बात करो, और रात को सोने से पहले ग्रेटिट्यूड फील करो, ग्रेटिट्यूड फील करो कि थैंक यू सो मच गॉड, वी आर अलाइव, राइट। हम जिंदा हैं, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए, बाकी चीजें बात की बात है कि हम जिंदा हैं, राइट। तो हमारी लाइफ बहुत जरूरी है, हमारे साथ साथ हमारे समाज, हमारे परिवार और हमारे दोस्तों के लिए भी। तो खुशियां फैलाते रहिए सारे यूथ मिलके, और अगर किसी यूथ को ऐसा लगता है गाइडेंस की कमी है, लैक ऑफ गाइडेंस है, वी आर हियर टू हेल्प यू। यू कैन इनबॉक्स ऑन लाइव्स एज वेल, यू कैन इनबॉक्स टू मी एज वेल, आप किसी को भी इनबॉक्स करिए, हम तो है ही यहाँ पे यूथ की हेल्प करने के लिए, राइट। सो बिकॉज क्योंकि ऐसा लगता है कि किसी को तो इनिशिएटिव लेना ही पड़ेगा। अगर हम इनिशिएटिव नहीं लेंगे और हम ये सोचेंगे सब कुछ सरकार करेगी, सरकार के साथ हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ सिटीजन कुछ करने की, ठीक है। और अगर आप लोगों को भी ऐसा लगता है कि मिलके कहीं समाज को बदलना है, सोसाइटी चेंज करनी है, साथ आइए, इनिशिएटिव लीजिए, करने वाले बनिए, गाइडेंस हमारी होगी, राइट। सो दैट्स गुड। सो थैंक यू सो मच वैष्णवी, इट वाज रियली अ ग्रेट सेशन। एंड बिफोर दैट मैं सभी व्यूअर्स को भी बोलना चाहूंगा, इफ यू वुड लाइक टू ज्वाइन initiative where you can transform others, especially youth. So this Independence Month we are celebrating with all youth. और मेरे इस कोचिंग टॉक शो में मैं सिर्फ यूथ और टीनेजर्स को इस पूरे मंथ इनवाइट करना चाहता हूं, ताकि वो आजाद होकर बोले, आजाद होकर अपनी सोच को फैलाएं, और जितना ज्यादा से ज्यादा होता है दूसरों को भी एक सोच, एक माइंड, एक थॉट प्रोसेस की गुलामी से आजाद करें। क्योंकि ये पूरा आजादी का मंथ एक यूथ, कहते हैं ना अपनी क्रांति, वो क्रांति होती है ना यूथ की। पहले भगत सिंह जी हमारे थे, क्रांतिकारी थे, उन्होंने स्वतंत्रता में कितना बड़ा सहयोग दिया था। तो आज की डेट में आप सभी यूथ के अंदर भी एक डिफरेंट लेवल की आग है, चिंगारी है। पर कितना है, आज की डेट में हम लोग गुलाम अंग्रेजों के नहीं है, हम लोग गुलाम अपनी सोच के हो चुके हैं। तो सोच से आजाद करना है। उस टाइम भगत सिंह जी ने अपना काम करा, आज हमारा टाइम है अपने सोच से अपने आप को भी आजाद करें और दूसरों को भी आजाद कराएं। क्योंकि ये गुलामी वाली सोच से हम अपने आप को गुलाम करके बैठे हुए हैं, दूसरे को नहीं।
तो अपने आप से झूठ मत बोलिए, अपने आप से सच सच बोलिए, अपने आप से ऑनेस्ट रहिए। जब आप अपने आप से ऑनेस्ट रहेंगे, सक्सेस आपको रोक नहीं सकती है, क्योंकि सक्सेस आपकी अपनी है, किसी की डोनेटेड नहीं है, और आपकी सक्सेस हमेशा आपकी हेल्पफुल होगी। थैंक यू सो मच किरण। आपकी सक्सेस हमेशा हेल्पफुल होगी जब आप अपने साथ दूसरों की हेल्प करेंगे। वैष्णवी, बहुत अच्छा लगा आज आपसे बात करके, और मुझे उम्मीद है एज ए यूथ आप इसी तरीके से इतने आउटस्टैंडिंग तरीके से यूथ की हेल्प करते रहेंगे, आगे भी, अभी भी और आने वाले दिनों में भी। और मेरी बेस्ट विशेस हमेशा आपके साथ हैं। मेरा हमेशा मैं चाहूंगा आप आगे बढ़े, और आप जैसे जितने यूथ आपके साथ हैं वो सभी लोग आगे बढ़े, ताकि देखते देखते मुझे भी अच्छा लगता है, वो भी एक हैप्पीनेस है जब यूथ आगे बढ़ता है। थैंक यू सो मच वैष्णवी फॉर योर वंडरफुल प्रेजेंस एंड योर टाइम, योर ऑल वैल्यूएबल कमेंट इज रियली हेल्पफुल फॉर एवरी यूथ। और मुझे उम्मीद है अगर आप जैसे यूथ एग्जिस्ट करते हैं हमारे सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी का ट्रांसफॉर्मेशन और हमारे नेशन की ग्रोथ को कोई नहीं रोक सकता। 100%। Thank you, sir. Great. Thank you so much, Vaishnavi. Add one Yeah, thing. sure, please. मैं अपनी यूथ को एक चीज़ बताना चाहूँगी दैट अभी हमने फेलियर्स की बात करी, आजकल की यूथ ज़्यादातर डिसहार्टेंड फेलियर्स को लेके ही होती है। तो मैं ये कहना चाहूँगी एट लास्ट कि सक्सेस एंड फेलियर्स आर द टू साइड्स ऑफ द सेम कॉइन्स। So don't fear your failures. What we should fear is that regression. We should fear the regression. Never give up, and because giving up is birth to failures. So never give up. Keep doing. Listen to your heart. Keep doing, and all the best for your future. I would like to say to the youth and you too, sir. All the best to Life Honors and you too. And God bless everyone. Thank you so much, everyone. Thank you, Vaishnavi, for your words, and thank you so much, everyone who all joined the Coaching Talk Show. We'll see you again in next episode with new, guest, amazing guest, exclusive guest. और episodes follow करने के लिए और episodes को सुनने के लिए आप मेरे account पे follow करिए, ताकि आपको updates मिलती रहे next episodes के बारे में, और Lives Honor को follow करके देखिए, right? Thank you so much. Take care. See you and have a great evening to all of you. Thank you, Vaishnavi. Thank you.